نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنریہ من آیاتنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی امام الانبیاء والمرسلین۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا۔ سدیا کالم اتے مطلوب گیا اتے جبریل سی سد لے جان والا۔ تے باز کہندے نے بنا دروازے تو گیا کس طرح عرش اتنے جان والا۔ اے پر عقل ابر کی دخل تھے جانے جان والا، یہ سد لے جان والا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے اور لاڈلے محبوب حبیب کبریا احمد مجتبیٰ سرور سربراہ باعث تخلیق کائنات آپ کے اور میرے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ نہایت ہی عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب و احترام سامعین ناظرین حضرات قبلہ استاد ابراہیم، میں نے آپ کے سامنے رب لم یزل کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کروایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ دوستان گرامی قدر، آج رات شب معراج ہے اور اس رات کو محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں وہ نشانیاں کیا ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور برات کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ حضور برات کے اوپر سوار ہو کر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رات کے وقت اس طرح لگ رہا ہوتا ہے جس طرح کے رات کے وقت بھی دن چڑھا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ چاند کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب 27ویں رات آتی ہے تو اس وقت چاند بالکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے، رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کی کوئی رمق دکھائی نہیں دیتی، ہر طرف اندھیروں ظلمات کے پہرے ہوتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رات کو براق کے اوپر سوار ہو کر حضور علیہ السلام جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری سواری ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس سے گزرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ٹیلے کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے، رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام
कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्ताने करामी कदर, हदीस मुबारका में आता है, हुजूर फरमाते हैं सूरह रंग कबीला। अब जरा गौर कीजिए कि बंदा दिन के वक्त अगर पैदल चल रहा हो, बंदा रास्ते में देखता है कहीं रंग नजर आते हैं तो बंदा उन रंगों को अच्छी तरह से पहचानता है। थोड़ा सा तेजी के साथ चल रहा हो तो रंगों में तमीज करना मुश्किल हो जाती है। और इत्तेफाक से अगर बंदा ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है तो फिर अगर बंदा रंगों को देखता है तो रंग मजीद मुश्किल हो जाता है रंगों के अंदर तमीज करना। और बुर्राक जिसके ऊपर हुजूर सवार हैं उसका नाम, उसके नाम से ही उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुर्राक के बर्क से निकला है। आप उलमा जानते हैं कि बर्क जो है वो बिजली को कहा जाता है, जहां से स्विच ऑन किया जाता है और सैकड़ों मील पर लगा हुआ बल्ब 1 सेकंड से पहले जल जाता है। और ये तो बर्क है, जो बुर्राक है उसकी रफ्तार का फिर क्या आलम होगा। हदीस मुबारका में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहां पे बुर्राक की निगाहों की हद होती है वहां पे बुर्राक का पहला कदम पड़ता है। अगर हम ट्रेन के ऊपर बैठे हुए तो हम रंगों में तमीज नहीं कर सकते। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक के ऊपर सवार हैं और अंधेरी रात है, हर तरफ जुल्मात के पहरे हैं और रोशनी की कोई रमक नहीं है। हुजूर बुर्राक पर सवार होकर तेजी के साथ चलते हुए जा रहे हैं। बुर्राक तेजी से चलता हुआ मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे के वक्त हुजूर उस टीले को भी देखते हैं, उस टीले के रंग को भी हुजूर पहचानते हैं और हुजूर नबी अकरम उसके अंदर बनी हुई कब्र को भी पहचानते हैं। और हुजूर ये भी देखते हैं कि हुजूर फरमाते हैं मैंने कब्र के अंदर देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं इस पर दलील देता चलूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा है। हुजूर का एक सहाबी हुजूर की बारगाह में खड़ा होता है, अर्ज करता है या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इरशाद ग्रामी है कि जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ते हो तो मैं तुम्हारा दरूद अपने कानों से समात करता हूँ। या रसूलल्लाह, आज तो आप हमारी मजलिस के अंदर मौजूद हैं, आप हमारे अंदर मौजूद हैं, हम आपके पास बैठते हैं। या रसूलल्लाह, हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, आप दुरूद व सलाम को समात करते हैं। और अल्लाह ताला का जो कानून है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। या रसूलल्लाह, जब हम मर जाते हैं हमारी हड्डियां बिखर जाती हैं, हम नापैद हो जाते हैं, नाबूद हो जाते हैं, तो ऐ प्यारे महबूब जब आप इस प्रोसेस के अंदर से गुजरेंगे, जब आप पर मौत आ जाएगी, आप इस दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, आप कब्र के अंदर तशरीफ लेकर जाएंगे, तो महबूब आपके साथ भी ऐसा होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी, ऐ मुझसे पूछने वाले, इस बात का जवाब ये है कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया। ऐ मेरे सहाबी, अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया है मिट्टी अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकता। अब सहाबी ने सवाल क्या किया था? सुनने के बारे में कि या रसूलल्लाह, कब्र के अंदर आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया? जिस्म अक़दस के बारे में। अब भाई सवाल और है, जवाब और है। हम किसी बंदे से सवाल करते हैं, कोई लीडर खड़ा है, सियासतदान खड़ा है, मौलवी साहब स्टेज के ऊपर खड़े हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, अगर उनको सवाल का जवाब नहीं आता तो वो बात को गोल करेंगे, गोल करके अपनी जान छुड़ाएंगे और चले जाएंगे। अब नौज़बिल्लाह हम ये तो नहीं कह सकते कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बात को गोल कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम जवाब से अब कभी कतरा रहे थे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबी ने सवाल किया है, या रसूलल्लाह, कब्र में आप सुनेंगे या नहीं सुने? लेकिन हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया है, मिट्टी अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। हम इंसान हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर चीजों को हराम किया है हम उनको खा सकते हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी कर सके। मिट्टी अंबिया के जिस्मों को नहीं खाती। दोस्ताने गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया है वो एक कदम आगे बढ़कर जवाब दिया है। सहाबी ने समाज के बारे में सवाल किया है और सुनने का ताल्लुक जिंदगी के साथ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया। हुजूर फरमाते हैं तुम मुझसे सुनने के बारे में बात करते हो, यहाँ पर तो रब्बे कायनात ने हमारे जिस्मों को भी साबित रखा है और यहाँ पर
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम तो मुझसे सुनने के बारे में सवाल करते हो, रब्बे कायनात ने हमारे जिस्मों को भी महफूज कर दिया है, हमारे जिस्म भी अपने मट्टी के अंदर महफूज रहेंगे और हम अपने कानों से मोहब्बत वालों के दुरूद को समाप्त भी करते हैं। हुजूर फरमाते हैं फनबीयुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी कब्र में जिंदा होता है, उसको रिज़्क़ भी अता किया जाता है। दोस्ताने करामी कदर, ये अल्लाह की एक निशानियों में से एक निशानी है। पहले रब्बे कायनात ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था, और सुनने की बात और है, देखने की बात और है। पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सुना था कि मट्टी पर अल्लाह ने हराम कर दिया है, मट्टी अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। और जब मिराज की रात आई तो अल्लाह ने दिखा भी दिया है कि किस तरह अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। दोस्ताने गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम का बुर्राक आगे चलता है। हुजूर मस्जिद अक्सा में तशरीफ लेकर जाते हैं, वहां पर जाकर अंबिया को इमामत करवाते हैं। और आप उलमा जानते हैं, बहुत लंबा एक वाक़या है मिराज शरीफ का। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम लामकाम पर अर्श बरी पर गए, अर्श बरी से जन्नत में सिदरतुल मुंतहा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अल्लाह ताला की ज़ियारत करके वापस आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब ज़ियारत वापस करके आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते राइतु रब्बी फी अहसनि सूरा, मैंने अपने रब को खूबसूरत शक्ल में देखा है। दोस्ताने गिरामी कदर, जो यहूदी हैं उन्होंने कहा वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाइयों ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। और मुशरिकीन मक्का ने कहा, उन्होंने कहा कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नऊज़ बिल्लाह बेटियां हैं। और कुछ लोगों ने तो हद कर दी, उन्होंने कहा नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं। और जब हुजूर को मिराज करवाया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया, फरमाया महबूब कुछ कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कुछ ईसाई कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कुछ कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, और कुछ मुशरिकीन कहते हैं कि ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। ऐ महबूब जरा मेरे पास आकर देखना यहाँ पर कोई मेरी बेटी या बेटा मौजूद है। तो महबूब जब उधर से होकर आए ना, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर हमको बताया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह तो वहदहु ला शरीक है, ना ही उसको किसी ने जन्म दिया है और ना ही वो किसी से जन्म दिया गया। दोस्तानी गिरामी कदर, फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से नमाजों का तोहफा भी लेकर आए। नमाजों का तोहफा लेकर जब वापस पलटे, छठे आसमान पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हुजूर वापस जाएं आपकी बारगाह में, नमाजों में तखफीफ करवा लें, आपके उम्मतियों पर ये 50 नमाजें बारी हैं, उनसे अदा नहीं की जाएगी। तो महबूब वापस रब की बारगाह में जाएं और जाकर तखफीफ करवा लें। हुजूर अलैहिस्सलाम वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या हजरत और कम करवा ले। हुजूर फिर वापस जाते हैं रब की बारगाह में, फिर कुछ कम करवा के वापस आते हैं। बाज़ रवायात में 10-10 का जिक्र आया, बाज़ में 5-5 का जिक्र आया। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है जितनी मर्तबा भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाए हैं। लेकिन बात याद आई जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर तशरीफ लेकर गए ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा अरिनी, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो आगे से आवाज़ क्या आती है, लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। लिहाजा अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं थी रब का दीदार, मूसा अलैहिस्सलाम अगर नामुमकिन होता, ये बात बिल्कुल महाल होती, तो मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी इसका सवाल न करते। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम को आगे से खिताब मिलता है लन तरानी, कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम नहीं देख सकते, लिहाजा पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं देख सकते, लेकिन कोई तो ऐसी जात है जो अल्लाह को देख सकती है, और वो जात तेरे और मेरे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिलता है। अब मैं ये बात दलील के तौर पर नहीं पेश करता, मैं अपने ज़ौक़ के लिए बयान करना चाहता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम
آپ آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی زیارت کروائی، رب کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے جاتے رہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلیوں کی تاب تو نہ لا سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب حضور وہاں پر جاتے تھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو رب تعالیٰ کی تجلیوں کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر، رب تعالیٰ کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اور موسیٰ علیہ السلام ان تجلیوں کو حضور کی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کے اندر سمیٹتے، ان کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے عقیدے کے ترجمان بھی بولے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو رب کی ایک تجلی کو دیکھا تو آپ طور پہاڑ پر غش کھا کر گر پڑتے ہیں، اور ادھر محمد کریم ہیں کہ بار بار رب کی بارگاہ میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال تو کر کے پوچھو، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کر کے دیکھو کہ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو نا کہ اے موسیٰ تم نے کس کو دیکھا تھا کہ جس کی ایک تجلی دیکھ کر تم غش کھا کر بے ہوش ہو گئے، اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سبحان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب